Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I want to cover lecture on entity relationship diagram, that is called in short ER diagram in software engineering. In my previous lecture I have covered data flow diagram, requirement analysis, feasibility study and many more. But today is the most important topic is what? Entity relationship diagram. What is that? When you deal with the database, what are the attributes, what are the entities and how to relate with the database, all the entities and attributes, that is showing in the pictorial representation of the diagram by the with the help of pictorial representation, it is called ER diagram, right. So, what is the ER diagram basically? Entity relationship diagram is what? It is detailed logical representation of data for any organization. Use the three main constraints. What is that? Entities, relationships and attributes. Three main key points हैं क्या? Entities, relationship and attributes. तो what is the entities? Fundamental things about which data may be mentioned. Each entity has its own identity. Entity type is the describe of all the entities in which a common definition and common relationship and attributes applied, right. And in case of, suppose that we take an example of insurance policy, right. What are the entities and what are the attributes of the entities? So, consider the insurance company of that offer both home and automobile insurance policies. These policies are offered to individuals and businesses. तो दो entities में क्या बने? Policies and customers, right. तो policies क्या हैं और customers किस तरह के हैं? तो राइट तो पॉलिसीज हमारी दो तरह की हैं, एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस पॉलिसी है, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? इंडिविजुअल कस्टमर पॉलिसी. और कोई बिजनेस की इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहा है तो दोनों डिफरेंट हैं, राइट. तो टाइप ऑफ कस्टमर कितने हुए? किसी इंडिविजुअल को लेना है या बिजनेस पूरे किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेना इंश्योरेंस कराना है, चाहे वो होम पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कराना हो, चाहे जितनी कंपनीज में गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं उनकी ऑटोमोबाइल की इंश्योरेंस करानी हो, कॉर्पोरेट का पूरा, राइट. तो एट्रीब्यूट्स क्या हुई? पॉलिसी एंड एंटिटीज़ क्या हुई? पॉलिसी एंड कस्टमर, राइट. व्हाट आर द रिलेशनशिप? हाउ टू डिफाइन द रिलेशनशिप? इन केस ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, with the help of entity relationship diagram, each and every technical person identify the relationship between the entities and shown by the diamond, right. And how many types of entities relationship? One to one, one to many, and many to one, right, or many to many. Right, that is a combination of the relationship. अब ये क्या है देखते हैं पहले. Relationship is creation associating two entities types. दैट इज अ बाइनरी रिलेशनशिप. बाइनरी मतलब व्हाट? कि एरो के दोनों तरफ दो एंटिटीज होंगी जिसके बीच में आप रिलेशन शो करेंगे, राइट. इन्वॉल्व्स द टू एंटिटीज टाइप. अ कस्टमर इज इंश्योर्ड बाय अ पॉलिसी. ऑलवेज कस्टमर कब रिलेशन होगा? जब वो कोई पॉलिसी परचेज करेगा, राइट. एंड अ पॉलिसी क्लेम इज मेड अगेंस्ट अ पॉलिसी. पॉलिसी कभी भी किसी के अकॉर्डिंग क्लेम की जाती है, जो पॉलिसी के रूल्स हैं, जो पॉलिसी के प्रोसीजर्स हैं, राइट.
तो अब रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायमंड एंड नोटेशन इन द ER डायग्राम। मैंने आपको बोला कि जो रिलेशनशिप शो होता है किससे शो होता है, डायमंड। जब भी आप दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन शो करेंगे तो किसके बीच में किससे शो करेंगे, डायमंड से, और एंटिटीज किससे शो करेंगे, रेक्टेंगल्स में, राइट। डायमंड शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज। क्लियर? ओके, तो देखते हैं कस्टमर इंश्योर्ड बाय अ पॉलिसी। कस्टमर ने कोई पॉलिसी परचेज करी। अब कस्टमर कितने टाइप का हो सकता है, इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स शोइंग इन एलिप्स। कस्टमर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, राइट, दैट इज व्हाट, इंडिविजुअल कस्टमर हो सकता है या बिजनेस कस्टमर हो सकता है, राइट। तो दैट इज टाइप ऑफ कस्टमर, बट यहां पे उसकी जरूरत नहीं। आपको यहां पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप। तो कस्टमर और पॉलिसी के बीच में क्या रिलेशन है कि वो पॉलिसी के थ्रू इंश्योर्ड होगा कस्टमर, राइट। एंड पॉलिसी जब भी क्लेम की जाए किसके अगेंस्ट की जाएगी, जो पॉलिसी क्लेम का प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी क्लेम की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उसको बेनिफिट्स मिलेंगे व्हेन एनी कस्टमर क्लेमिंग द पॉलिसी, राइट। एंड a training department is interested to tracking which is the training course each of the employee has completed। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई सपोज दैट एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मल्टीपल टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करती रहती है, तो अब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, ट्रेनिंग में एम्प्लॉय जाकर रजिस्टर कर सकता है टाइम टू टाइम, मल्टीपल ट्रेनिंग में रजिस्टर कर सकता है या रिस्ट्रिक्शन है, एट ए टाइम एक लेगा। तो कोई भी एम्प्लॉय मल्टीपल टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है मल्टीपल ट्रेनिंग में, राइट। तो रिलेशनशिप क्या आया, एम्प्लॉय एंड कोर्सेस, वन एम्प्लॉय मेनी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, राइट। एक एम्प्लॉय मेनी कोर्सेज कंप्लीट कर सकता है ट्रेनिंग के, टाइम मैनेजमेंट उससे उसकी प्रॉब्लम, बट कर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब मेनी एम्प्लॉय मेनी कोर्सेज कर सकते हैं तो मेनी टू मेनी है, राइट। डिपेंड्स कि आपने क्या कंस्ट्रेंट लगाए हैं, राइट। तो ईच एम्प्लॉय मे कंप्लीट मोर देन वन कोर्सेस, राइट। हर एम्प्लॉय मोर देन वन कोर्सेज कंप्लीट कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है ना। एंड ईच कोर्सेस में बी कंप्लीट बाय मोर देन वन एम्प्लॉय। क्लियर? अभी देखिए, जब भी कई बार आप क्रेडेंशियल, आप देखिए कई बार आप लॉगिन आईडी पासवर्ड आप यूज करते हैं बैंकिंग में, इन केस ऑफ बैंकिंग, अगर आप एक बार सिस्टम में लॉगिन कर गए सेम आईडी पासवर्ड से आप कहीं लॉगिन और करेंगे, दैट इज रॉन्ग। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगलटन पैटर्न यूज करना पड़ेगा। अब सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, बेसिकली जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड करेंगे कुछ लॉजिक्स लिखने पड़ते हैं सिंगलटन पैटर्न को कोड करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में हम अभी कोडिंग तो नहीं सिखा रहे हैं आपको, बट ये बताना चाह रहे हैं कि सिंगलटन पैटर्न करता क्या है। सिंगलटन पैटर्न रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि किसी भी क्लास का सिंगल ऑब्जेक्ट ही बनेगा, जब तक वो ऑब्जेक्ट किल नहीं होगा दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। यूज़ क्या है इसका, सपोज दैट आप चाहते हैं आपकी फंक्शनैलिटी में जो कस्टमर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, इसकी जगह अगर हम मान लें कोई भी हमारा कस्टमर है और वो उसका रिलेशनशिप क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन करना, ठीक है, ट्रांजैक्शन है, तो ये क्या करता है, इससे कनेक्टेड होगा लॉगिन के थ्रू। तो एट ए टाइम वन टू मेनी नहीं होना चाहिए, वन टू वन हो, तो एट दैट टाइम सिंगलटन पैटर्न यूज होगा। आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि एट ए टाइम सिंगलटन ही, सिंगल ऑब्जेक्ट ही बनेगा, जब तक वो किल नहीं होगा दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। इन दैट केस मैं आपको कोडिंग के रिकॉर्डिंग लॉजिक बता रहा हूँ, सिंगलटन पैटर्न के थ्रू अगर आप कोड करेंगे तो होगा क्या कि एट ए टाइम उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब एक बंदा लॉगिन होगा सेम आईडी पासवर्ड से, जब तक वो लॉग आउट नहीं होता तब तक अगेन लॉगिन किसी और सिस्टम से नहीं कर सकता वो, राइट।
तो ये क्या कर रहे हैं, जब भी आपको ये चैलेंज आएगा कि रिलेशन 1 to 1 है या 1 to many है या many to 1 है या many to many है, तो ऑलवेज गो फॉर द एक्सेस मॉडिफायर, राइट, एंड write the logic for that, because this is a scope. Okay. And degree of relationship, actually 3 types of degree mentioned in the ER diagrams: unary, binary and ternary. What is the unary relationship, what is binary relationship, what is ternary relationship? अब suppose that 1 to 1, जब भी 1 to 1 मैपिंग होगी हम उसे क्या बोलेंगे, यूनरी। अब किसी बंदे को एक पर्सन एक ही शादी कर सकता है फॉर एग्जांपल, और सेम लॉजिक मैंने आपको जो प्रीवियस में अभी दिया था कि एट अ टाइम बैंकिंग में सिर्फ एक ही आदमी लॉजिक एक्सेस लॉगिन कर सकता है, ठीक है, और नेट बैंकिंग, ठीक। तो जो भी लॉगिन करेगा टाइम 1 करेगा, तो यहाँ भी 1 to 1 है मैपिंग। अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहें, एक पर्सन एट टाइम एक ही आदमी शादी करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, राइट। तो 1 to 1 मैपिंग हुई, दैट इज कॉल्ड यूनिट रिलेशनशिप। बट 1 to many, एक एम्प्लॉय मल्टीपल एम्प्लॉय को मैनेज कर सकता है। जो मैनेजर होता है वो भी एम्प्लॉय होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, बट मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है, राइट। तो उसके अंदर जो टीम होती है, जैसे आप IT इंडस्ट्री की बात करें तो मैनेजर्स, डिलीवरी मैनेजर्स, उनके अंदर डेवलपमेंट की टीम होती है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, सॉफ्टवेयर ट्रेनी, टेस्ट इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, ऐसा मैनी डेजिग्नेशंस हैं। उस पूरी टीम को कौन मैनेज करता है, मैनेजर। बट वो भी एम्प्लॉय होता है उस कंपनी का, राइट। तो वो एम्प्लॉय भी है, साथ में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को मैनेज भी कर रहा है, दैट इज 1 to many। तो कैसे शो करेंगे आप, लाइक दिस, एक एम्प्लॉय यहां से गया और मैनेज किससे कर रहा है, मल्टीपल एम्प्लॉयज को, ठीक है। बाइनरी रिलेशनशिप प्रीवियस वाला क्या था, यूनरी, कि पर्सन ही पर्सन शादी कर रहा था, किसी और पर्सन से कर रहा था, बट वो भी पर्सन ही है, राइट, सेम एंटिटी है। यहां पे भी एम्प्लॉय सेम एंटिटी है, बट एक एम्प्लॉय मल्टीपल एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर डिजिग्नेशन, बट ऑल आर द एम्प्लॉय, राइट। तो दिस इज रिलेशनशिप इज व्हाट, यूनरी रिलेशनशिप। ये वाला बाइनरी था, कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों, क्योंकि ये कस्टमर है और ये बैंकिंग है, दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, राइट। ये बाइनरी रिलेशनशिप है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, राइट। व्हाट इज द बाइनरी रिलेशनशिप बिटवीन, अगर दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। देखते हैं कैसे। अब एम्प्लॉय है और पार्किंग प्लेस है। जब कभी भी एम्प्लॉय अपने वर्क प्लेस पे जाएगा तो गाड़ी पार्किंग का स्पेस का फिक्स होता है कई बार, अदरवाइज जो वैकेंट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे उसको पार्क करना होता है, राइट। तब एक एम्प्लॉय को एक ही पार्किंग अलॉट होगी, तो 1 to 1, बट रिलेशन क्या है, बाइनरी। लेकिन एंटिटीज डिफरेंट हैं, पार्किंग प्लेस एंड एम्प्लॉय बोथ आर द डिफरेंट एंटिटीज, एंड बट आपस में रिलेशंस क्या है, 1 to 1। एक एम्प्लॉय को एक ही पार्किंग प्लेस अलोकेट होगा, दैट इज शोइंग इन द ER डायग्राम। अगर ये डायग्राम आप किसको दे देंगे, डेवलपमेंट टीम को, तो वो क्या करेगा, जो एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाएगा, टेबल, राइट, जो एम्प्लॉय की टेबल बनेगी, तो एम्प्लॉय नेम, फोन नंबर, सैलरी एंड पार्किंग प्लेस भी उसको एलोकेट होगा, राइट। तो एक एम्प्लॉय को एक ही पार्किंग प्लेस एलोकेट होगा, क्लियर। दैट इज 1 to 1 रिलेशनशिप। तो ये शो होगा उसके डेटाबेस में आपका पार्किंग प्लेस क्या है फ्रंट एंड पे। तो ये जब तक ये रिलेशनशिप नहीं पता होगी तो कभी भी यहाँ पर राइट कोडिंग नहीं होगी। तो ये रिलेशनशिप पता होना मस्ट है। तो एक एम्प्लॉय को एक ही पार्किंग प्लेस असाइन होगा, दैट इज बाइनरी रिलेशनशिप शोइंग इन द ER डायग्राम। अगेन वन मोर एग्जांपल 1 to many का।
प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट, राइट। अब कोई भी प्रोडक्ट लाइन है और कोई प्रोडक्ट है, उनके बीच में मल्टीपल लाइन्स हो सकती हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। वो सारे प्रोजेक्ट 1 to many, प्रोडक्ट लाइन एक है और प्रोडक्ट मेनी है, ये भी 1 to many है। अगेन स्टूडेंट एंड कोर्स, कोई भी वही एम्प्लॉय वाला जैसे पहले था, यहाँ पे कनेक्टेड होगा, राइट। ठीक, तो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट मैनी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है, तो 1 to many हो गया। अब बात करते हैं टर्नरी रिलेशनशिप की। व्हाट इज द टर्नरी रिलेशनशिप? अब यहाँ पे देखिए 3 एंटिटीज हैं, 1, 2 and 3 एंटिटीज, राइट। वेंडर, पार्ट्स एंड वेयरहाउस। शिप्स हैं जो कि यहाँ से वहाँ सामान ले जाती हैं, तो वेंडर्स कौन से हैं और कौन कौन से पार्ट्स ले जाती हैं ये, और वेयर हाउसेज कहाँ कहाँ पे हैं, ऑल आर कनेक्टेड विद द रिलेशनशिप क्या है, शिपिंग, ठीक। एंड 2 एंटिटीज टाइप ए बी कनेक्टेड बाय द रिलेशनशिप, राइट। Cardinalities and optionalities क्या हैं? The cardinality of the relationship is the number of instances of entity B that can be associated with the each instance of A. ये ध्यान से देखिए, cardinality क्या है? बेसिकली मूवी है और वीडियो टेप है। अब जो भी वीडियो टेप है वो मूवी का इंस्टेंस होगा, मगर मूवी की क्लिप्स हैं वो, तो राइट। तो जितने भी पार्ट बी एंटिटी हैं, ये वीडियो टेप्स तो हैं, बट ऑल आर द टेप्स फॉर द, कहाँ से लिया गया, ये मूवी के डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स हैं, राइट। इज स्टॉक्ड एज वीडियो टेप, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स है ना। अगर मूवी को मल्टीपल क्लिप्स में डिवाइड कर दिया जाए तो एक एंटिटी हो गई क्लिप्स, एक हो गई मूवी, बट ऑल आर द पार्ट बी इज इंस्टेंस ऑफ द पार्ट ए, मतलब सारी क्लिपिंग किसकी हैं, मूवी का ही तो पार्ट है, राइट। That is called cardinalities. And what is that? Minimum cardinality is the minimum number of instances of entity B that may be associated with the each instance of the entity A, right. And minimum number of tapes available for the movie is 0. अब suppose that video tapes available नहीं है मूवी के लिए, we say videotape is optional participation in the stock as relationship. अगर 0 है तो ऑप्शनल है, क्लिप्स हो भी सकती हैं, वीडियो क्लिप्स, वीडियो टेप्स हो भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट। तो मूवीज बट है, स्टॉक में वीडियो टेप्स हैं या नहीं है, दैट इज, इसको अगर 0 है तो इसको इस तरह शो करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप, राइट। एरो में 0 लगाएंगे तो जैसे क्या हो जाएगा, 0 है, क्लियर, दैट इज शोइंग द रिलेशनशिप, राइट। दैट इज कॉल्ड ऑप्शनैलिटी। प्रीवियस वाला क्या था, कार्डिनलिटी। देख लीजिए ध्यान से, टर्नरी रिलेशनशिप है एंड दैट इज कार्डिनलिटी, एंड आफ्टर दैट ऑप्शनैलिटी, ओके। दैट इज द डायग्राम ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट कैसे शो करते हैं आपको पता है, एलिप्स से। ईच एंटिटी हैज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विथ इट. An attribute is a property of characteristics of entity that is of interest of organization. Okay. For example, employee is a entity. अब employee के attributes क्या होंगे, किससे शो कर रहे हैं हम, ellipse से, राइट। ऑल आर द एट्रीब्यूट सिंबल लाइक दिस। अब देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। एम्प्लॉय इज ए एंटिटी, एट्रीब्यूट्स इज व्हाट, एम्प्लॉय नंबर, दैट इज द प्राइमरी की ऑल्सो, एंड एम्प्लॉय फोन नंबर, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय
parking place, etc., or the attributes of the entity of employee, right? And relationship between them, how to represent it? The candidate key is attribute of the combination of attributes that unique key identified and each instance of the entity, student ID and candidate key, राइट स्टूडेंट की जो आईडी है वो एज ए कैंडिडेट की काम करती है, दो जगह आप कहीं यूज कर सकते हैं, राइट? दैट्स कॉल्ड फॉरेन की ऑल्सो. इन इफ देयर आर मोर कैंडिडेट कीज, वन ऑफ द की मे बी चूजन एज आइडेंटिफायर. अगर आपने किसी एक चूज को क्या चूज किया है एज आइडेंटिफायर, इट इज यूज टू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एंटिटी टाइप. अगर कोई आइडेंटिफायर आपने चूज कर लिया किसी एट्रीब्यूट को, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी, दैट इज ए यूनिक की आपने चूज किया, दैट इज की, दैट इज प्राइमरी की. अगर इसको आप बनाते हैं तो क्या करेंगे आप? इसको अंडरलाइन करेंगे, दैट इज नोटेशन ऑफ द प्राइमरी की, दैट इज यूनिक आईडी, राइट? जैसे आप यूनिवर्सिटीज में अपने रोल नंबर आपके क्या है, दैट इज ए यूनिक आईडी, दैट इज प्राइमरी की. आपको जब भी फेच किया जाएगा आपके नाम से नहीं किया जाएगा, ऑलवेज सर्च फॉर योर रोल नंबर, राइट? देन these are the attributes, student attributes, student ID, student name, student address and phone numbers, right? अगर हम student ID को primary key बनाएंगे, that is underline that, okay, that is a primary key. And vendor quotes price of several parts of the following the quantities part of the drawing the ER diagram. quotations आपको लेने हैं vendor से parts के. then vendors, multiple vendors हैं और multiple parts हैं, right? तो कितनी क्वांटिटीज में, दैट इज द ऑर्डर कोड्स. कोटेशन का जो ऑर्डर होगा वो दो चीज़ों पे होगा, क्वांटिटी कितनी होगी और उसका प्राइस कितना होगा, राइट? दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द कोटेशन. कितनी क्वांटिटी होगी और कितने उसके प्राइस होंगे, क्या प्राइस होगा. दीज आर द, अगर आप ये आर डायग्राम किसी भी डेवलपर को दिखा दें तो समझ जाएगा, राइट? पहली बात तो मेन टू मेन रिलेशनशिप है और एट्रीब्यूट्स हैं. एक्चुअली ये एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप के साथ अटैच कर दिए. यहाँ भी आप एंटिटी के साथ अटैच होना चाहिए था कि पार्ट्स के क्वांटिटी और प्राइस क्या होंगे, राइट? ओके, तो मेरे ख्याल से आप व्हाट इज एंटिटी, व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज रिलेशनशिप, व्हाट इज कार्डिनलिटी, व्हाट इज ऑप्शनैलिटी एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वन टू वन, वन टू मेनी टू वन, आप अच्छे से समझ गए होंगे, राइट? तो टुडे आई हैव कवर्ड द लेक्चर ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एंड वन टू मेनी टू मेनी एंड मेनी टू वन, ऑल आर कवर्ड इन टुडे लेक्चर. एंड अगर आप समझना चाहें दोबारा क्या चीज़ आपका मिसिंग है, बेसिकली एट्रीब्यूट्स. तो अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट, अब ये क्या है, अब ये फैकल्टी है. तो आपने एक दिखाया क्या एंटिटी, फैकल्टी. तो फैकल्टी क्या पढ़ाएगा, टॉट द सब्जेक्ट, राइट? रिलेशनशिप क्या आएगा, टॉट, राइट? और फैकल्टी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं. तो सब्जेक्ट्स टॉट, राइट? और फैकल्टी एम्प्लॉय भी है, राइट? तो एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स, तो फैकल्टी के साथ साथ वो एम्प्लॉय भी है, राइट? तो ऑल द थिंग्स आर शोइंग इन द ER डायग्राम. तो इसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे फैकल्टी के पास, देखा जाए तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फोन नंबर, एम्प्लॉय एड्रेस, right? And salary and expertise and degrees and many more, okay? तो suppose that ER डायग्राम में ये सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं और रिलेशनशिप भी. अब सपोज दैट अगर हम बात करें मूवी की, तो मूवी
के जो क्लिप्स हैं, अगर इसको हम और एलोबरेट करें तो फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप क्या है हमारा, टाइप। तो मूवी का टाइप क्या होगा, एंटिटी क्या है हमारे, एक्शन मूवी। लेकिन अब ये क्या होगी, कार्डिनैलिटी होगी, राइट, क्योंकि इसी मूवीज में से ये सारी चीजें एक्सटेंस हैं इसके। अगेन फ्रिक्शन मूवीज हैं, साइंस फिक्शन, एंड हॉरर मूवीज हैं, एंड मेनी मोर, राइट। ऑल आर द रिलेशन बिटवीन द movies and the entities. And आपके पास कोई अगर प्रॉब्लम है, सपोज दैट आप ऐसे समझना चाहें, मान लीजिए एक पैराग्राफ है, लाइन है, लाइन, और किससे कनेक्टेड है, पैराग्राफ से। अगेन ये किससे कनेक्टेड है, डॉक्यूमेंट से। तो अगेन आपस में रिलेटेड है ना, राइट। बट इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। लाइन किसका पार्ट है, पैराग्राफ का। पैराग्राफ किसका पार्ट है, डॉक्यूमेंट का। दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। दैट इज व्हाट, एग्रीगेशन। एंड अगर हम बात करते हैं जनरलाइजेशन की, तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप। जैसे अब बात करें काइंड ऑफ रिलेशनशिप क्या है, जैसे आपने कस्टमर की बात की थी, राइट। तो कितने टाइप के कस्टमर थे, दिस वन। तो कस्टमर के टाइप क्या थे हमारे, इंडिविजुअल एंड बिजनेस, टू टाइप के कस्टमर थे, राइट। तो बिजनेस कस्टमर के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे, इंडिविजुअल कस्टमर के डिफरेंट होंगे। अगर जो बिजनेस कस्टमर से कोई न कोई कंपनी होगी, LLP, वन पर्सन कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड, तो उनका कुछ ना कुछ पैन नंबर, टिन नंबर जो डेटाबेस में आएगा, राइट। टिन नंबर स्पेशली होगा, GST नंबर होगा। इंडिविजुअल का भी हो सकता है आज डेट में, बट बिजनेस पर्सन का जरूर होना चाहिए, बिजनेस का जरूर कस्टमर का होना चाहिए। कॉर्पोरेट अकाउंट भी होगा उनका, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनके बिजनेस के, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ईच एंड एवरी डेटा मेंटेन बाय दिस टेबल, बिजनेस कस्टमर एंड इंडिविजुअल पर्सन का डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, राइट। तो डिपेंड ऑन दैट कि किस टाइप का डेटाबेस क्रिएट करना है फॉर ईच एंड एवरी एंटिटीज़। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का डेटा डिफरेंट होगा, स्टूडेंट एंटिटीज़ है डिफरेंट होगा, है ना। कस्टमर्स हैं, किस टाइप का कस्टमर है उसका डेटा डिफरेंट होगा। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं तो पॉलिसीज़ किस टाइप की हैं, होम इंश्योरेंस पॉलिसी है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस पॉलिसी है, राइट। ऑटोमोबाइल में भी डिफरेंट होंगी, कार की पॉलिसी डिफरेंट होंगी, बाइक की पॉलिसीज डिफरेंट होंगी, राइट। उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैशलेस है या डिफरेंट, राइट। तो टाइप ऑफ, जहाँ भी टाइप आएगा वहाँ जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे रिलेशनशिप की, राइट। तो टुडे आई हैव कवर्ड व्हाट, रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द एंटिटीज एंड व्हाट आर द रिलेशनशिप शोइंग इन द डायमंड, and what type of relationship, one to one, one to many, many to many and many to one, and type of relationship degrees, unary, binary and ternary। जब एक ही एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो करेंगे दैट इज कॉल्ड यूनरी, अगर दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को दैट इज कॉल्ड बाइनरी, एंड थ्री एंटिटीज के केस में अगर हम शो करेंगे दैट इज कॉल्ड टर्सरी, लाइक दिस। इसमें कितने एंटिटीज हैं, थ्री, वेंडर, पार्ट्स एंड वेयरहाउस, राइट। अब कार्डिनैलिटी क्या है, एक ही मूवी के मल्टीपल क्लिप्स हैं, तो जो क्लिप्स हैं वो किसकी पार्ट है, मूवी का। तो ऑब्वियसली जो इंस्टेंस है किसके होंगे, मूवी के होंगे। ऑब्वियसली वन टू मेनी रिलेशनशिप होगा, बट जो इंस्टेंस होगा वो ऑलवेज मूवी का होगा, क्योंकि मूवी की ही क्लिप हैं, वो वीडियो क्लिप्स हैं, इंस्टेंसेस हैं, राइट। दैट इज कार्डिनैलिटी। और अगर किसी भी मूवी के इंस्टेंसेस जीरो हैं, क्लिप जीरो है, तो इसको यहाँ पे लाइन में जीरो बनाएंगे एंड देन कनेक्टेड विद दिस, दैट इज मेनी। हो सकता है मेनी बट है नहीं,
that is called optionality, right, and attributes showing in the ellipse like this, and I have explained the many examples, right. That is a quotation of the vendor and prices of the part, and student ID, name, address and phone number of the student attributes. Student is the entity, and how to connect it. Thank you.